Hello students, today we are going to discuss about the internal structure of heart. Now, while discussing the internal structure, we are of course going to discuss about both the kind of compartments, that is auricles and ventricles. Now, firstly about the auricles. So, everybody of you know that there are two auricles in heart and two ventricles. So, two auricles, they are the upper chambers, superior chambers. Both the auricles, they are upper chambers, they are superior chambers. According to position, they are superior. They are having top position as compared to the ventricles. Hence, yes, upper superior chambers. Then, yes, they are smaller than the ventricles. They are small chambers. Upper chambers, superior chambers, small chambers and blood receiving chambers. Why blood receiving chambers? Because both of these auricles, they receive, yes, blood from, yes, various organs of the body. For example, right auricle receives blood from the body parts. Which blood? Deoxygenated blood from body parts. And the left auricle, it receives blood, oxygenated blood from lungs. तो जो राइट ऑरिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी पार्ट से, और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग से. इसीलिए इन दोनों चेंबर्स को हम कहते हैं ब्लड रिसीविंग चेंबर्स. तो अगर हम अब ऑरिकल के बारे में चार मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर लिखना चाहे तो पहला, यस, अपर चेंबर्स है. ऑरिकल्स आर द अपर चेंबर्स और यू कैन से सुपेरियर चेंबर्स. दूसरा, दे आर स्मॉलर देन द, yes, ventricles. Then, yes, third one, they are thin-walled chambers. Auricles are the thin-walled chambers. And then, lastly, they are blood-receiving chambers. They are blood. They are blood-receiving chambers. So, upper chambers है auricle, superior chambers है, top position है उनकी, स्मॉलर है वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में, थिन वॉल्ड है वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में अगेन, और ब्लड रिसीविंग चेंबर है बिकॉज बोथ द ऑरिकल्स दे रिसीव द yes blood. Yes, right auricle receives the blood from various parts of the body. Deoxygenated blood is received in right auricle and left auricle receives oxygenated blood from lungs. Thus, yes, auricles are upper, superior, smaller, thin walled blood receiving chambers. Now, yes, among both of these auricles, yes, right auricle is more thin than the left auricle. Yes, wall of the right auricle is more thin than the wall of the, yes, left auricle. Now, why comparatively auricles are having yes, thin walls? Because they just have to pour the blood into the ventricles which are, yes, lying below them, है ना. तो ऑरिकल्स के वॉल वेंट्रिकल्स के वॉल के कंपैरिजन में थिन क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि उन्हें सिर्फ ब्लड जो है वो नीचे के वेंट्रिकल्स में पोर करना है, ब्लड को पंप या पुश नहीं करना है. इसलिए उनके वॉल्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आने वाला नहीं है जो कि उन्हें टॉलरेट करना पड़े. और इसलिए अगर उनके वॉल्स थिन भी रह जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अगर प्रेशर टॉलरेट करना पड़े तो वॉल कैसे रखने होते हैं? थिक रखने होते हैं. और ये काम जो है वेंट्रिकल्स का है, ब्लड पंपिंग का. इसलिए वेंट्रिकल्स के वॉल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ऑरिकल के वॉल से थोड़े थिक होते हैं. तो ऑरिकल के बारे में पहले हमने मेन चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो पढ़ लिए. उसके बाद दो ऑरिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने वाला एक थिन वॉल्ड सेप्टम होता है दोनों के बीच में, है ना. एंड द नेम टू दैट सेप्टम इज, यस, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, है ना. IAS शॉर्ट में उसे डिस्क्राइब करेंगे हम ध्यान में रखने के हिसाब से. IAS यानी कि इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. तो ये जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम होता है ये दोनों ऑरिकल्स को एक दूसरे से, यस, अलग करता है, सेपरेट करता है. इसकी क्यों जरूरत है बेटा? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड होता है? यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे में मिक्स ना हो इसलिए एक सेपरेटिंग सेप्टम की वहां जरूरत होती है, और वही सेपरेटिंग सेप्टम है, यस, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, और वी कैन से इट एज, यस, IAS. तो ये IAS नाम का जो सेप्टम है ये सेपरेट करता है राइट ऑरिकल को, यस, लेफ्ट ऑरिकल से.
सो राइट ऑरिकल जो है वो स्मॉलर चेंबर होता है, सॉरी लार्जर चेंबर होता है, और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर चेंबर होता है। और राइट ऑरिकल की वॉल जो है वो लेफ्ट ऑरिकल के वॉल से थोड़ी कम थिक होती है, यानी कि थिन होती है। सो अब ये थे ऑरिकल्स के बारे में जनरल पॉइंट। और ये जो हमारा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, यहाँ मैं ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा ब्रॉड ड्रॉ कर रही हूँ मैं एक्चुअली ये थिन होता है, लेकिन है ना समझाने के हिसाब से थोड़ा ब्रॉड मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो IAS है यानी कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में हमें राइट साइड में, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में एक ओवल आकार का डिप्रेशन दिखाई देता है, और इस ओवल आकार के डिप्रेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं यस फोसा ओवेलिस। इस ओवल आकार के डिप्रेशन को हम कहते हैं यस फोसा ओवेलिस। और ये जो डिप्रेशन है ये जन्म के बाद हमें राइट ऑरिकल के राइट साइड में, यानी राइट ऑरिकल में इंटरऑरिकुलर सेप्टम की जो राइट साइड है उसमें हमें ये ओवल आकार का डिप्रेशन दिखता है, जिसको कि हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और यही फोसा ओवेलिस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, तो ऐसे कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 9 मंथ्स के डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान यहाँ एक आर पार ओपनिंग हुआ करता था, है ना। इस प्रकार से ये आर पार ओपनिंग यहाँ एक हुआ करता था, और उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं यस फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। तो यस इंटरऑरिकुलर सेप्टम के बारे में खास बात ये बतानी है कि इंटरऑरिकुलर सेप्टम जो है उसकी राइट साइड में एक ओवल आकार का डिप्रेशन हमें, है ना, जन्म के बाद हार्ट में दिखाई देता है, और उस ओवल आकार के डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, जो कि रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के एक ओपनिंग को, जो कि आर पार ओपनिंग होता है राइट और लेफ्ट ऑरिकल को जोड़ने वाला, जिसको कि हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो इस प्रकार से यस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बारे में हमने जानकारी ली। राइट ऑरिकल साइज में बड़ा है, लेफ्ट ऑरिकल साइज में छोटा है, राइट ऑरिकल की वॉल थिन है, लेफ्ट ऑरिकल की वॉल थोड़ी थिक है, दोनों को सेपरेट करने वाला इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। उस पे राइट साइड में एक डिप्रेशन है ओवल आकार का, जिसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, जो रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के एक ओपनिंग को, जो कि है ना फोरामेन ओवेल नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये जनरल आइडिया थी दोनों ऑरिकल्स के बारे में। अब हम एक एक ऑरिकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं राइट ऑरिकल फॉर द डिस्कशन। राइट ऑरिकल को ले रहे हैं डिस्कशन के लिए। पहले तो राइट ऑरिकल के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राइट ऑरिकल जो है बड़ा होता है साइज में, और उसकी वॉल जो होती है वो थिन होती है ना। थिनेस्ट वॉल पूरे हार्ट के चारों चेंबर्स में सबसे थिन वॉल होती है राइट ऑरिकल की। राइट ऑरिकल में बेटा 3 जो बड़े बड़े वेन्स है वो खुलते हैं, तीनों के तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं राइट ऑरिकल में। All the 3 major veins they open in the right auricle, and all of them they bring deoxygenated blood from various organs of the body, or you can say various parts of the body. तो इसमें 3 वेन्स है, बड़े बड़े खुल रहे हैं। ये पहले नंबर की जो वेन है वो ऊपर से नीचे की तरफ खुल रही है हार्ट में राइट ऑरिकल में, वो है सुपेरियर वेना क्यावा। What is the name of that large vein? Yes, superior vena cava. Superior vena cava को हम शॉर्ट में प्री कैवल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? Yes, प्री कैवल। तो सुपेरियर वेना क्यावा या फिर प्री कैवल लाती है कौन सा ब्लड बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से लाती है? फ्रॉम यस वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट से लाती है। और खास करके कौन से बॉडी पार्ट से लाती है? यस, अपर बॉडी पार्ट से लाती है ना। अपर बॉडी पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा करके उसे राइट ऑरिकल में पोर करने का काम किसे दिया गया है? यस, सुपेरियर वेना क्यावा। Yes, means superior vena cava or precaval brings deoxygenated blood from various parts of the body, especially from the upper parts of the body, and pour that all deoxygenated blood into the right auricle. Then next one is the inferior vena cava.
The next one is the inferior vena cava. Yes, this inferior vena cava is also called as, yes, inferior vena cava post caval. क्या बोलते हैं उसको? पोस्ट कैवल बोलते हैं इंफेरियर वेना कैवा को. और ये इंफेरियर वेना कैवा लोअर बॉडी पार्ट से, कहां से? यस, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है ना. कौन सा ब्लड? ऑफ कोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. सो इंफेरियर वेना कैवा brings deoxygenated blood from, yes, various lower parts of the body and pour that blood, yes, into the right auricle. Right auricle में डालती है. Now about the third, yes, vein, third large vein opening into the, yes, right auricle. तो तीसरी जो ये है वो है कोरोनरी वेन, है ना. कोरोनरी वेन जो कोरोनरी साइनस के फॉर्म में खुलती है राइट ऑरिकल में. और वो कहां से लाती है ब्लड? यस, कोरोनरी वेन कहां से लाती है? कोरोनरी वेन लाती है ब्लड हार्ट से, है ना. हार्ट से लाती है, यानी हार्ट के दीवारों में जो सेल्स है ना, कार्डियक मसल्स के, उन सभी सेल से, हार्ट के वॉल के सभी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके, है ना, कोरोनरी साइनस थ्रू कहां डाल दिया जाता है उस ब्लड को? यस, राइट ऑरिकल में. तो राइट ऑरिकल में अपर बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से और खुद हार्ट से, है ना, तीन जगह से ब्लड आता है. कौन सा ब्लड बेटा? ऑफ कोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले बार जमा किया जाता है कहां? राइट ऑरिकल में. अब ये जो तीन मेजर वेन्स खुल रहे हैं राइट ऑरिकल में, क्या इनके वॉल्व्स है ना. वॉल्व्स यानी VALVE, वॉल्व. तो देखो पहले बात करते हैं सुपेरियर वेना कैवा की, यानी कि प्री कैवल की. यस, प्री कैवल का कोई वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो जो ब्लड पोर कर रही है वो अलोंग द ग्रेविटेशन पोर कर रही है. और जब अलोंग द ग्रेविटेशन ब्लड पोर होता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाइड है, ग्रेविटेशन फोर्स जो अप्लाइड है, वो बैक फ्लो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है. तो बैक फ्लो का कोई रिस्क नहीं है, ब्लड के वापस जाने का कोई चांस नहीं है, तो वॉल्व की जरूरत नहीं है. और इसीलिए सुपेरियर वेना कैवा का कोई वॉल्व नहीं है, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है वॉल्व की, है ना. क्यों? क्योंकि बैक फ्लो की जहां रिस्क होती है ना, जहां बैक फ्लो का रिस्क होता है वहीं पे वॉल्व होता है. यहाँ सुपेरियर वेना कैवा में ब्लड वापस जाने का कोई रिस्क नहीं है, कोई चांस नहीं है. हेंस देयर इजंट एनी नीड ऑफ यस द वॉल्व, एंड देयरफॉर, है ना, देयर इजंट एनी काइंड ऑफ वॉल्व. अब बात करते हैं दूसरे पाइप की. हमारा दूसरा पाइप कौन सा है? दूसरी ब्लड वेसल कौन सी है? दूसरी वेन कौन सी है? यस, इंफेरियर वेना कैवा, है ना. कौन सी है? यस, इंफेरियर वेना कैवा. अब इंफेरियर वेना कैवा का जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ वॉल्व, है ना. उसका एक वॉल्व है, अपना वॉल्व है, क्योंकि यहाँ ब्लड जो पोर किया जा रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पोर किया जा रहा है, इसलिए बैक फ्लो का रिस्क है, ब्लड के वापस लौटने का रिस्क है, चांसेस आर देयर. एंड इसलिए क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है उसे गार्ड करता है नेचर एक वॉल्व के थ्रू, एंड द नेम ऑफ दैट वॉल्व इज स्टैचियन वॉल्व. उस वॉल्व का नाम क्या है? यस, स्टैचियन वॉल्व उसका नाम है, जो गार्ड करता है यस इंफेरियर वेना कैवा के ओपनिंग को और अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को ब्लड के, है ना. तो दुनिया का कोई भी वॉल्व हो, उसका काम क्या होता है जनरली? यस, टू अलो द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलो करना. और यस, बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल की तो सवाल ही नहीं आता. बाय डायरेक्शनल को प्रिवेंट करना और स्पेशली बैक फ्लो को प्रिवेंट करना.